हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर physics class. So in today's class we'll be continuing our chapter number 6, that is current, electricity. I had already made 3 videos on this chapter and this is the 4th video lecture that I am making for this very chapter. Let me remind the things that I had taught to you in the previous video. So in the previous video I had told you about Ohm's law, a very important law, okay, which states that your current flowing across a conductor is proportional to the potential difference across the ends of that particular conductor. ठीक है बच्चों, and talking about it mathematically, what we found out was your potential difference across the ends is equivalent to resistance of the conductor into the current flowing through this conductor. ठीक है बच्चों, सो आज की जो हमारी वीडियो लेक्चर है वो इस क्वांटिटी, जो कि पिछली वीडियो के अंदर एक कांस्टेंट का रोल प्ले कर चुकी है, दैट इज़ योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन ओम्स लॉ, दैट इज़ रेजिस्टेंस. इसके ऊपर ही आज की हमारी पूरी वीडियो फोकस्ड होगी एंड आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरी नॉलेज, ओके, ऑन द बेसिक्स ऑफ रेजिस्टेंस. कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसका काम क्या होता है, उसकी वैल्यू चेंज कैसे होती है, कलर कोड यूज़ करके हम उसको कैसे डिटेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज इन योर बोर्ड एग्जाम्स. Along with that, I'll also give you a short trick to learn the method of the color coding of resistors. ठीक है बच्चों, so now I hope we must begin our today's topic, which is electrical resistance. जो हमारा आज टॉपिक है बच्चों, that is electrical resistance. Fine. So in the very beginning, what I'll be doing is I'll be defining to you that what do you understand by electrical resistance. Okay, so इसको define करने के लिए we'll be using Ohm's law. As you could clearly see, I had mentioned Ohm's law over here that V is equivalent to IR. तो अब हम इसी Ohm's law को यूज़ करके ही अपने रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे. सो आपको क्लियरली दिख रहा है बच्चों यहाँ से कि मैं लिख सकता हूँ R इज इक्विवेलेंट टू V अपॉन I. यू कैन क्लियरली राइट डाउन योर रेजिस्टेंस एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द और थ्रू द कंडक्टर. सो बस इसी बेसिक नॉलेज को हम यूज़ करके डिफाइन करते हैं बच्चों अपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को. So let us write it down that it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of potential difference across the ends of the conductor, across the ends of the conductor to the current flowing through it. Okay, to the current flowing through it, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, कि आप इसकी डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत भी आपको बिल्कुल नहीं है. आपने सिर्फ इस ओम्स लॉ के इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को याद करना है एंड फ्रॉम दिस यू कैन क्लियरली डिफाइन योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, which is the ratio of potential difference across the ends of the conductor to the current flowing across it or through it. Okay, so over here I can write down mathematically that R is equivalent to V upon I. Okay, R is equivalent to V upon I. So ये तो definition हो गई.
okay, bookish language में. But if we try to understand the real meaning of resistance, so what resistance really is, I want to tell you बच्चों, resistance of a conductor is simply the opposition, it is simply the hindrance, okay, that a particular conductor offers to the current flowing through it. जो भी हम बच्चों करंट फ्लो करवाना चाहते हैं उसके लिए उस करंट के दुश्मन को जो प्रिवेंट करता है उस पर्टिकुलर करंट को अपने अंदर से पास होने को, उसी को हम बच्चों रेजिस्टेंस बोलते हैं. ओके, so talking about in basic language, you can say that resistance of a conductor is basically the opposition offered to the flow of current. ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर. फाइन, आई होप कि आपको रेजिस्टेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस एज वेल एज उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी SI unit of resistance. So you clearly know that your SI unit of resistance, आपको पता होगा बच्चों पहले से, that SI unit of resistance is ohm, a very well known unit. It is represented by this and sometimes it is simply written as O. ठीक है, the SI unit is ohm. और अगर बच्चों ये एक क्वेश्चन ये भी है कि आपसे एग्जामिनर पूछता है आपकी एग्जामिनेशन के अंदर दैट डिफाइन 1 ओम. कभी कभी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है कि डिफाइन 1 ओम, कि आपने इस SI यूनिट को भी डिफाइन करना है. सो लेट मी टेल यू, वो भी बहुत आसान तरीका होता है, उसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपल ये ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन याद है. सो आप रेजिस्टेंस के SI यूनिट यानी कि ओम को भी बहुत ईजिली डिफाइन कर सकते हो. लेट्स चेक हाउ. सो आपको डिफाइन करना है भाई 1 ओम. अब 1 ओम क्या है? इट इज़ दी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. इट इज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितना सिंपल सी हम फॉर्म कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन को बाय सिंपली यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, कि हमको पता है भाई रेजिस्टेंस क्या है, एक यूनिट है किसकी, रेजिस्टेंस की. सॉरी, ओम क्या है? एक यूनिट है आपके रेजिस्टेंस की. ओके, वो एक रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? 1 ओम तब होगा जब आप पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी हो, दैट शुड बी 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर मस्ट बी 1 एम्पियर. तब आपका जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू 1 ओम. ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ ओम एज वेल. यू कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफ ओम, जस्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be 1 ohm when 1 ampere of current flows through the conductor, or you can say flows through it. इट मैं किसको बोल रहा हूँ? कंडक्टर को ही बोल रहा हूँ. ओके, बिकॉज ये लैंग्वेज में आप देखो तो 80 यहाँ पर सूट करेगा. व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट. 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट. जहाँ भी मैंने बच्चों इट बोला है उसका मतलब मेरा कंडक्टर से ही है. सो डू नॉट कन्फ्यूज. अगर आप इसको एक सेंस में पढ़ोगे सो यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कितनी सिंपली हमने ये डेफिनेशन आपको लिखवाई है. और इसी तरह से आप बच्चों किसी भी ऐसा यूनिट को डिफाइन अपने आप कर सकते हो. इट्स अ रियली वेरी सिंपल टास्क टू डिफाइन एन ऐसा यूनिट, चाहे वो 1 एम्पियर हो चाहे वो 1 ओम हो. ओके, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं बच्चों ओम को. अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे यूनिट यहाँ पर हो गई आपकी. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, दैट ऑल्सो यू मस्ट नो. वैसे तो ये आपको अपने आप करना चाहिए फ्रॉम द नॉलेज ऑफ class 11th, but still I am telling you over here the dimensional formula for resistance. So you know the formula for R, which is V by I. What is V? So यहाँ पर बच्चों V क्या है? What is V actually? V है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस
जो आप पहले पढ़ चुके हो व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी व्हेन आई वाज टीचिंग यू अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, वहाँ पर हमने आपको डिफाइन करी थी एक क्वांटिटी विच इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। सो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? इट वाज सिंपली द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये क्या था बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस, इट वाज द वर्क डन। ओके, सो पोटेंशियल एक्चुअली क्या है? ये सिंपली वर्क डन है, दैट इज वर्क। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट के तौर पर इसको डिफाइन करूं, ओके, टू पुट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हम इसको केवल वर्क ही मानेंगे, और आगे जो हम देते हैं वर्क कितने का, किसका, ओके, दैट इज़ वेरी क्लियर टू यू। सो वो हमने आपको पहले डिफाइन कर रखा है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सम अदर चार्ज। ठीक है, उसको हमने पहले आपको डिफाइन करवा चुके हैं, सो आई नीड नॉट टेल इट, बट अभी आपको क्या याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली दी वर्क डन। ओके, और करंट यू नो वेरी वेल, इट्स एम्पियर। सो ओवर हियर यू राइट सिंपली ए, दैट इज योर करंट। और जस्ट अ मिनट, इफ़ यू ट्राई टू रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, सो आप पढ़ चुकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हमने देखो चार्ज को यहाँ पर मिस कर दिया, ये चार्ज भी यहाँ पर आएगा, वर्क पर यूनिट चार्ज। ओके, इस फॉर्मूले को अगर आपको देखना है, सो यू कैन मूव ऑन टू ए चैप्टर नंबर 4। ओके, वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला क्लियरली मिल जाएगा लिखा हुआ, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल इन टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो यहाँ पर आपको नीचे चार्ज भी मेंशन करना होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो बच्चों चार्ज आप पढ़ चुके हो पहले कि चार्ज विद रिलेशन टू करंट क्या होता है। देखो करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम विच फ्लोट्स थ्रू अ कंडक्टर। तो अगर मेरे को चार्ज को डिफाइन करना है, ओके, सो आई कैन से इट इज़ दी करंट इनटू टाइम, सो आई इंटू टी। अगर मैं इसको लिखूँ बच्चों ऐसा यूनिट में, सो आई राइट इट एज ए इंटू सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। ओके, आई होप यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये तो बात होगी बच्चों ऐसा ही यूनिट के अंदर, अब मेरे को उसको यहाँ पर पुट करना है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। सो आपको पता है एम्पियर का तो बच्चों ए ही होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, बट सेकंड क्या है? इट्स टाइम। सो इसको रिप्लेस करेगा बच्चों टी। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इट चार्ज की जगह पर आएगा बच्चों ए टी। वर्क यू नो वेरी वेल फ्रॉम योर क्लास 11th कि वर्क क्या होता है? वर्क इज मास इंटू एक्सलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, m इंटू ए इंटू डी। अगर आप इसको और थोड़ा ब्रीफ करोगे तो इट विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एम ए क्या होता है? एम ए इज़ फोर्स और डी क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। सो m को अगर आप कन्वर्ट करते हो, m इज़ मास, सो अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो डायमेंशनल फॉर्मूले में, सो ये m बन जाएगा बच्चों कैपिटल M डिनोटिंग मास। a क्या होता है? व्हाट इज़ a? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, वेलोसिटी यू नो इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से बच्चों एक सेकेंड मिल जाएगा, सो इट विल गिव यू द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। वैसे तो आपको याद होना चाहिए, बट स्टिल आई वेंट टू अ मोर ब्रीफ लेवल एंड टोल्ड यू, बट यू मस्ट नो कि एक्सप्लोरेशन की यूनिट इट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं मीटर को कन्वर्ट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, सो इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। सो ये बन जाएगा बच्चों एल। एस क्या है बच्चों? टाइम है, सो ये बन जाएगा t-2 और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स योर एल। ओके, सो यहाँ पर एक एल और आएगा। सो जो वर्क की आपके पास निकल के क्या आ रही डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज ml/t-2। ये आप पहले कर चुके हो, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू सो दैट ये कॉन्सेप्ट्स फिर से आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाएं। ये तो हो गया बच्चों वर्क का। ठीक है, और एज यू कुड सी क्लियरली कि ये वाला जो है दिस इज ऑफ योर चार्ज, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज ए टी, और करंट का मैं आपको यहाँ पर पहले लिखवा चुका हूँ, दैट इज ए। ठीक है, सो लेट्स सिंप्लीफाई इट आउट। वर्क का हो गया बच्चों ml/t-2। ओके, over here you could have your at into t, or you can say a into at। ठीक है,
इसको आप बच्चों सॉल्व करें एंड सिंप्लीफाई इट आउट, सो इट विल बी ml2 t-2 अपॉन a स्क्वायर t, ये t बच्चों ऊपर पहुंच जाएगा, t-3 हो जाएगा यहाँ पर. सो द फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला दैट यू हैव विद यू इज ml2 t-3 and a-2. so this is the final डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे निकालते हैं. याद करने को मैं अभी भी नहीं कहूँगा, ये मैंने बहुत ही सिंपल मेथड्स फॉलो करके इस सिंपल फॉर्मूला से निकाला है, विच इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ. ठीक है, सो दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नोटेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कि हम रेजिस्टेंस को, रजिस्टर्स को, ओके, हम रजिस्टर्स को, जो कि एक डिवाइस है, ओके, विच वी कॉमनली यूज़ इन आर प्रैक्टिकल क्लासेस, ओके, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, और साथ ही में बच्चों सर्किट्स के अंदर भी हम उसको कैसे डिनोट करेंगे. सो ये सिंबल आपने बहुत देखा होगा, जिगजैग सिंबल है, ओके. सो दिस इज़ दी सर्किट डायग्राम ऑफ रेजिस्टेंस. दिस इज़ दी सर्किट डायग्राम ऑफ अ रजिस्टर. ओके, दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ अ रजिस्टर. दिस यू मस्ट नो. कुछ रजिस्टर्स आपको इस तरह दिखेंगे और बच्चों कुछ इस तरह के भी दिखते हैं कभी कभी, या प्रैक्टिकल्स में तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी प्रैक्टिकल बुक के अंदर देखने को मिलेंगे. सम रजिस्टर्स इन विच यू हैव अ एरो लाइक दिस गोइंग अक्रॉस द रजिस्टर. नाउ व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स अ वेरिएबल रजिस्टर. दिस सिंबल इंडिकेट्स अ वेरिएबल रजिस्टर, यानी कि आप इस रजिस्टर की, इस डिवाइस की जो रेजिस्टेंस है बच्चों, जो इसकी कैपेबिलिटी है टू अपोज द करंट, उसको चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी अनुसार. ठीक है, जबकि जो ये वाला रजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस बच्चों फिक्स्ड है, ओके. वेयर एज ये वाला रजिस्टर है, इट कैन बी चेंज्ड बाय यू. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू अगेन मेंशन, which I had already mentioned in my previous video, that is कि बच्चों जो भी ये रजिस्टर है, इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बच्चों फिक्स्ड होती है किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए. उसको हम चेंज कर सकते हैं ओनली बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर. अगर कोई आपसे कहे कि भाई रजिस्टर की रेजिस्टेंस अफेक्ट होती है बाय द चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट थ्रू इट, सो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. ये बात आपने बहुत ध्यान से समझ करके रखनी है. जो रजिस्टर की वैल्यू है, किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन वैल्यूज़, ओके, बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ वी एंड आई. ये आपको पता अच्छे से होना चाहिए, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते हैं. सो दिस वाज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रजिस्टर. एक रजिस्टर बच्चों, और आपको आपकी प्रैक्टिकल बुक में मेरे को याद आ रहा है कि इस तरह का भी दे देते हैं बना करके, ओके, सम वॉट लाइक दिस. इस तरह का भी रजिस्टर कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा. सो इससे डरना मत कि ये क्या है. इट इज़ सिंपली अ सेकेंड फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस वेरिएबल रजिस्टर, कि आप चाहो तो इस एरो को ऐसे प्लेस कर दो, या चाहो तो इस एरो को ऐसे प्लेस कर दो. जो दोनों ही सिंबल्स हैं, दोनों ही रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरिएबल रजिस्टर्स. इसको आप बच्चों रियोस्टेट भी बोलते हो. दैट यू कैन सिंपली आस्क योर फिजिक्स टीचर इन योर क्लास और द लैब अटेंडेंट ऑफ फिजिक्स लैब, एंड ही कैन शो यू, और आपके साथ डील भी करोगे, ओके, वेन एवर योर स्कूल ओपन्स. सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, और यू कैन से रियोस्टेट. ठीक है, अब ये तो कि बच्चों पिक्टोरियल और यू कैन से सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रजिस्टर. अब बात करते हैं कि हाउ कैन वी रीड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर, ओके. बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी विच इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर आप उसको और भी जो कॉमनली बोलते हो, दैट इज़ रेजिस्टिविटी. But before that, please note down all the things till here. I am turning the page. So now we'll be discussing about resistivity, or you also call it as specific resistance or specific
resistance. It is a really good quantity, okay, which you need to be aware of, because as I already told you कि भाई जो resistance है, it does not depends upon the value of potential difference or the current flowing through a conductor. So on what values does this value of resistance depends? So let me tell you कि बच्चों resistance of a conductor depends upon two values. Okay, depends upon two values. The number one being which is the length of the conductor. Okay, or if I talk about majorly, so you can see the first quantity on which the resistance depend is the nature of material. Okay, first let us talk broadly, फिर पहुँचेंगे बच्चों लेंथ पर अभी नहीं जाते. Okay, so two broad categories I'm talking about. First is the nature of the material of the conductor. Nature of the material of conductor. Okay, this is the first factor on which the value of resistance depends. The second factor on which the value depends upon is your geometry of that particular conductor. What is it? It is the geometry of that particular कंडक्टर. अब ज्योमेट्री के अंदर ही बच्चों वो लेंथ और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आता है जिसकी हम आपसे बात कर रहे थे. ओके, सो ज्योमेट्री के अंदर जो पहली चीज़ आती है दैट इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ना ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लेंथ के साथ कैसा वेरिएशन है आपके रेजिस्टेंस का. ओके, सो यू मस्ट नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. दिस यू मस्ट नो वेरी वेरी क्लियरली कि भाई ज़्यादा लेंथ तो ज़्यादा रेजिस्टेंस. फाइन. नंबर टू इज योर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ द क्रॉस section. Now this you must know that the resistance of a particular conductor is inversely proportional to the area of the cross section of the conductor. अब इसको समझने के लिए बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल दैट आई गिव इज़ कि मान के चलो बच्चों आपके पास एक कंडक्टर है. ओके, सो व्हाट एक्चुअली दिस रेजिस्टेंस इज़. ये रेजिस्टेंस कुछ ऐसे लोगों की फ़ौज है जो आपके करंट करंट को आगे बढ़ने से रोकती है. करंट क्या है? करंट एक बैरियर है जो कि इन आर्मी ऑफिसर्स को, यू कैन से इन ग्रुप ऑफ पीपल्स को तोड़ करके इसको आगे जाना है. ओके, करंट ने आगे फ्लो करना है बट इट नीड्स टू क्रॉस दिस बॉर्डर विच इज़ बीइंग गार्डेड बाय दीज ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है. सो अब आप सिंपल से बच्चों समझो कि अगर मेरे पास एक एरिया है, बड़ा एरिया जहाँ पर ये बहुत सारे लोग फैले हुए हैं, सो वहाँ पर मेरे पास बच्चों करंट ले जाना मुश्किल होगा क्योंकि जैसे जैसे अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ाता जाऊँगा सो वहीं पर बॉर्डर पर ये लोग और फैलते जाएंगे. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है. एज आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ माई कंडक्टर द वैल्यू और यू कैन से these group of people will keep spreading, okay, and therefore will hinder my current to flow. यानी कि अगर मैं बॉर्डर की लेंथ बढ़ा रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस भी बढ़ा रहा हूँ. ओके, आई एम इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ दोज पीपल अराउंड मी. ठीक है, विच विल स्टॉप दिस करंट फ्रॉम फ्लोइंग. और अगर हम बात करें बच्चों एरिया की, सो इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर 5 लोग हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया में खड़े हैं. ओके, अगर 5 लोग हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया में खड़े हैं, सो एक 6th बंदे के लिए इस एरिया से निकलना मुश्किल होगा जिसको ये 5 रोकेंगे क्योंकि ये 5 एक छोटे से एरिया में है और वहाँ से पास होना बच्चों बहुत मुश्किल हो सकता है उस 6th वाले व्यक्ति के लिए. बट इफ़ आई इंक्रीज़ द एरिया, अगर मैं ओवरऑल इस कंडक्टर का एरिया बढ़ा दूँ, इसको चौड़ा कर दूँ, वायर को और मोटी कर दूँ, सो क्या होगा, यही 5 लोग क्या होंगे, अब दूर दूर खड़े होंगे. ओके, अब क्या होगा, जो 6th व्यक्ति है जिसको ये पहले 5 सारे रोक रहे थे, अब वो बहुत ही ईजिली यहाँ से पास हो पाएगा. यानी कि जो आपकी रेजिस्टेंस है वो वीक हो जाएगी अगर मैं एरिया बढ़ाता हूँ अपने कंडक्टर का. तो सो ओवर हेयर वी लर्न दैट योर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर.
अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ, कंबाइनिंग माई फर्स्ट इक्वेशन एंड कंबाइनिंग माई सेकेंड इक्वेशन, सो व्हाट आई विल गेट इज माई रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. ठीक है, माई रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. नाउ यू नो दैट वेरी वेल कि भाई इसको अगर हटाना है प्रोपोर्शनैलिटी को, सो हमें एक इक्वल टू लगाना होगा, साथ में एक कांस्टेंट को भी लेकर के आना होगा. सो अब जो कांस्टेंट आ रहा है उसी को हम बच्चों बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर. ठीक है, हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, इक्वल टू लाए और साथ में एक कांस्टेंट भी लाए. जिस कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, इट वाज द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर. दैट इज योर आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, जहाँ पर ये जो रो है इसी को हम बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो वेयर रो इज रेजिस्टिविटी. ओके, सो अगर आपको बच्चों रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी है, सो आप बहुत ही ईजिली इस फॉर्मूले को देख करके डिफाइन कर सकते हो. योर रेजिस्टिविटी, हाउ यू विल बी डिफाइनिंग इट इज़ कि भाई रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी विल बी आर इंटू ए बाई एल. मैंने सिर्फ इसको ए को इधर भेजा है, एल को नीचे भेज दिया है, ताकि मेरे पास जो रेजिस्टिविटी है वो अलग रह जाए, ताकि मैं इसको डिफाइन कर पाऊँ. ओके, सो इसको कैसे डिफाइन करोगे आप, दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस of that particular substance, okay, provided my area is 1 meter and my length of the conductor is also 1 meter. मैं क्या कर रहा हूँ, टू डिफाइन दिस रेजिस्टिविटी मैं इस A को और इस L को 1 रख रहा हूँ, ताकि मैं इसको डिफाइन कर पाऊँ इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर. ओके, तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि रेजिस्टिविटी of a material is defined as, or you can say is equal to the resistance of a conductor having cross sectional area 1 meter square and the length of the conductor as 1 meter. ठीक है, जो भी उस पर्टिकुलर कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी वही मेरी रेजिस्टिविटी होगी. ठीक है, सो मैंने इस तरह से अपने रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर दिया है. नाउ टॉकिंग अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यू कैन क्लियरली टेल मी बाय डिकोडिंग दिस फॉर्मूला दैट व्हाट विल बी माय एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. सो एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं बच्चों, सो आपको दिख रहा होगा कि आर की क्या होती है यूनिट, इट इज़ ओम. ए क्या है बच्चों, ए इज़ लेंथ 2 बार, यानी कि मीटर इंटू मीटर. एल एरिया क्या है, एरिया इज़ लेंथ इंटू लेंथ. ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मैंने मीटर इंटू मीटर कर दिया उसको, डिवाइडेड बाय ये भी लेंथ है, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर होगी. सो 1 मीटर को कट कर देगा. सो व्हाट आई विल बी हैविंग ओवर हियर इज ओम मीटर. तो ऐसा यूनिट इज ओम मीटर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ये ओम मीटर बच्चों कैसे है. Now talking about the dimensional formula, which is again very simple to derive if you know the formula for the resistance. Okay, so dimensional formula I am giving you as an homework. dimensional formula आपने मेरे को खुद बताना है निकाल करके कि क्या रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा. ओके, अब बच्चों कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पर ये आपकी वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है, क्योंकि ये देखो किसी भी मटेरियल के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हमने डिराइव किया है एक्सपेरिमेंटली, बट अगर आप इसको चाहो तो थियोरेटिकली भी डिराइव कर सकते हो. सो फॉर दैट यू नीड टू नो अ पर्टिकुलर डेरिवेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम्स के अंदर वेदर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल और वेदर इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन इटसेल्फ भी पूछी जाती है. सो नाउ आई वांट योर 100% अटेंशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड एज फार एज आई कुड सी एंड विजुअलाइज कि बच्चों जो डिकोडिंग वाला सेक्शन है ऑफ अ रजिस्टर, ओके, दैट वील बी डूइंग इन दी अपकमिंग वीडियो. अभी के लिए आप इस वाली डेरिवेशन पर बहुत ध्यान दो, दैट इज़ द डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस in terms of the relaxation time. Okay,
जिसको यूज़ करके हम रजिस्टिविटी को डिफाइन करके कुछ सर्टेन पैरामीटर्स निकालेंगे जिस पर हमारी रजिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करती होगी. Okay, so now you should be focused. We are doing a derivation section on the resistance of a conductor, resistance of a conductor in terms of L, A and tau. Tau is mean free time or realization time. Fine. So first of all, we will be drawing a diagram of a conductor connected to some battery which is providing it a particular potential difference. Fine. So this is my diagram that I had drawn in front of you. This is the area of the cross section. This is the length of the conductor. Okay, let me say it has n number of electrons. ठीक है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? दे आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फाइन. एंड लेट मी से द रिलैक्सेशन टाइम इज टाउ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विथ विच दिस बैटरी इज गिविंग इज v. फाइन. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. वील स्टार्टेड राइटिंग दैट फिगर शोज a conductor of length L, area A, connected to a battery having potential difference, or you can say providing a potential difference V across the ends of the conductor. Fine. अब आपको याद होगा बच्चों कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कुछ करंट इसके अंदर ज़रूर डेवलप हुआ होगा. ओके, सो द रिजल्टिंग करंट can be given by a formula. If you remember, I had told you in the second video lecture of this chapter that I is equivalent to NEAVD, where N is the number of electrons, E is the charge on one electron, A is the area of the cross section and VD is the drift velocity of the electrons. ठीक है, so आप लिखोगे that the resulting current is given by your I is equivalent to NEAVD, an important formula. Okay, this we will be using to derive the formula for resistance. Fine. But since we know that your drift velocity is given by one more formula, what is that? Is by E into electrical field into the रिलैक्सेशन टाइम अपॉन द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए. अगर याद नहीं है सो दोबारा मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो लेक्चर नंबर 2 को देखिए इस चैप्टर की, वहाँ पर हमने इसको डिराइव किया था. ई क्या है? ई इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. कैपिटल ई क्या है? इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस कंडक्टर. टाउ क्या है? टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम. एम इज़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है बच्चों. नाउ सिंस वी नो दैट, भाई हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर. यह आप पढ़ चुके हो बच्चों चैप्टर नंबर 1 में. ओके, यूनिट नंबर 1 में, सॉरी, दैट E इज इक्वल टू V बाई L और चैप्टर नंबर 4 में हमारे. ठीक है, सो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस फॉर्मूले को दैट E इज इक्वल टू V बाई L. जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हो वो है किसके कारण? वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण है. ओके, so let's substitute this value of V and L into this formula. So please note down all the things till here. I am turning the page. So now I am replacing that E by V by L. So आपका जो formula है बच्चों I का, it will convert into N E A. Now in place of VD I am writing E V tau
अपॉन एम एल। मैंने क्या किया, उस ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर दिया बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ से। सो आप आगे देखो, इसको सॉल्व करो। इट विल बी एन ई स्क्वायर ए ताउ अपॉन एम एल इंटू वी। ओके, बट अगर आप ध्यान दो बच्चों, सो हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम है टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। और आप पढ़ चुके हो फ्रॉम ओम्स लॉ कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, V बाई आई। और यहाँ पर फॉर्मूले में आपके पास V भी है और I भी है। सो अगर मैं इस I को यहाँ ले आऊँ और इस सारी वैल्यूज़ को उधर ले जाऊँ, सो मेरे पास जो रिजल्टिंग फॉर्मूला होगा बचा हुआ ये मेरे पास R का ही होगा, विच यू क्लियरली नो फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, इस I को यहाँ लेके जा रहे हैं और इन सारी वैल्यूज़ को उधर लेके जा रहे हैं। सो इट विल बी ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए ताउ इज इक्वल इन टू V बाय आई। अब from Ohm's law you know that V by I is equal to R. Okay, so you write that from Ohm's law your V is equivalent, V by I is equivalent to R. So यहाँ पर आप लिख दोगे बच्चों your R is equivalent to ML upon NE square A tau. अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस डिपेंड्स अपॉन योर वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप कितने ध्यान से इसको ऑब्जर्व करते हो उतनी ही इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती रहती है। क्योंकि इंपॉर्टेंस नंबर 1, ये बात बच्चों प्रूव करती है आपके ओम्स लॉ को। देखो ओम्स लॉ ने क्या कहा, ओम्स लॉ स्टेटेड दैट योर रेशो ऑफ V एंड I इज़ अ कॉन्स्टेंट। उन्होंने क्या किया, what he said was the ratio of V and I is constant। यही तो कहा था एक तरह से उन्होंने। ओके, सो अगर आप बच्चों इस वैल्यू को ध्यान से देखो तो क्या ये सारी चीज़ें कांस्टेंट नहीं है किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, कि ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट नहीं है, दे आर कांस्टेंट। आप ध्यान से देखो, m क्या है, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स्ड है, ठीक है। l क्या है, l इज़ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, फिक्स्ड है, हाँ जी है। n क्या है बच्चों, स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कंडक्टर, वो भी फिक्स्ड है किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए। सो एन भी फिक्स्ड हो गया। ई क्या है, ई इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी फिक्स्ड है। ए क्या है, ए इज़ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, सो ए भी आपका फिक्स हो गया। ताऊ क्या है, ताऊ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम, ये भी किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए फिक्स्ड होता है, सो ये भी आपका फिक्स्ड हो गया। सो आप अगर सारी क्वांटिटीज़ देखो तो किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, ओके, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, टेम्परेचर की और प्रेशर की। क्योंकि आप देख रहे हो टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये वैल्यू चेंज होगी, सो आपका ओम्स लॉ भी वैलिड नहीं रहेगा। सो ये जो आपकी ये वाली लाइन है या ये वाली लाइन आप ले लो, द टू लाइन्स सेटिस्फाई ओम्स लॉ as well as gives you an important formula for resistance। okay, that your resistance की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ml अपॉन NE स्क्वायर A ताऊ। हमारा मेन एम क्या था, हमारा मेन एम था भाई हम रेजिस्टिविटी को भी निकाल पाएँ। सो अगर आप बच्चों ध्यान से देखो, सो आप लिख सकते हो R इज़ इक्वल टू, हम L बाई ए को अलग कर रहा हूँ मैं, L बाई ए को मैं अलग ले गया और बाकी सारी क्वान्टिटीज़ को अलग लिख रहा हूँ। वो क्वान्टिटीज़ क्या क्या है, देखो ऊपर से बचा M, नीचे से बचता है बच्चों देखिए एन ई स्क्वायर ताऊ, एन ई स्क्वायर ताऊ। अगर आप ध्यान से इस फॉर्मूले को कंपेयर करो इस वाले फॉर्मूले से, दैट आर इज इक्वल इन टू रो एल बाई ए, सो आप देख पाओगे कि भाई ये जो वैल्यू है ये रो की वैल्यू है, दैट इज़ द रेजिस्टिविटी की वैल्यू है। ओके, सो आप क्लियरली यहाँ से लिख सकते हो कि आपके पास जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर ताऊ। सो यहाँ पर हमने क्या क्या किया, ये देखा आपने, ये डेरिवेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी। इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस, इट गेव अस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस, इट प्रूव्ड ओम्स लॉ, इसने ओम्स लॉ को प्रूव किया, भाई जो V बाई आई है वो एक कॉन्स्टेंट है। Importance number 3, it gave us an expression for resistivity as well,
जो रजिस्टिविटी होती है, अगर आपको वैल्यू नहीं दे रखी तो आप निकाल सकते हो अपने न्यूमेरिकल्स में बाय द फॉर्मूला m/ne² ताऊ। ओके, अगर आप 2-3 बार भी इस डेरिवेशन को करोगे, इन फॉर्मूलेस को याद करोगे, सो यू कैन, ये फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, आपको लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो यहाँ से आपको बच्चों क्लियरली दिख रहा है कि आपके पास जो रो की वैल्यू है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, एंड मीन फ्री टाइम। ओके, और एक बात और बड़ी अच्छी हमें यहाँ पर पता चलती है कि आपकी जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी है, दी वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मार्क इट इंपॉर्टेंट। ओके, वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स upon the length of the conductor or the area of the cross section of the conductor। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता ऑन द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, सिमिलरली द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ L एंड A। इस L और इस A पर आपकी रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। ओके, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है L और A पर, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती L और A पर। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन दीज वैल्यूज, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड मीन फ्री टाइम। ठीक है बच्चों, सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस का एक टॉपिक रह गया है, दैट इज कलर डिकोडिंग, that I'll be telling you in the upcoming video. So thank you very much in this video lecture.